یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلجیم کے دارالحکومت برسل سے کوئی 20 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 200 برس پہلے اسی میدان میں تاریخ کی ایک فیصلہ کن لڑائی ڈیسائیو بیٹل لڑی گئی تھی۔ اسی مقام کی مناسبت سے اس کو دی بیٹل آف واٹرلو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ تھے جو اپنا تخت بچانے کی آخری جنگ لڑنے آئے تھے۔ ان کے مقابلے میں برٹش کمانڈر آرتھر ویلزلی تھے جو اپنے ٹائٹل ڈیویک آف ویلنگٹن کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ دونوں اپنے وقت کے منجھے ہوئے کمانڈر تھے اور دونوں کے پاس اس دور کی طاقتور ترین فوجیں تھیں، مگر نپولین بوناپارٹ ایک غلطی کر رہے تھے، دشمن کو کمزور سمجھنے کی غلطی۔ یہ ڈیوک آف ویلنگٹن کو سولجر جنرل کہتے تھے۔ ان کی اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ ڈیوک آف ویلنگٹن ایک سپاہی کے درجے کا انسان ہے جنہیں برطانیہ نے غلطی سے کمانڈر بنا دیا ہے۔ نپولین نے اپنے کمانڈر پر جو واٹرلو سے پہلے انگریزوں سے ہار گئے تھے سخت طنز کیا اور کہا کہ اگر ویلنگٹن نے ماضی میں تمہیں ہرایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک اچھا جنرل ہے اور کسی بھی دوسرے فرینچ جنرل کو ہرا سکتا ہے۔ میری بات مانو تو ویلنگٹن ایک فارغ سا جنرل ہے اور انگریزی سپاہیوں کو لڑنا بھی نہیں آتا۔ سو واٹرلو کی جنگ بس یوں ہی سمجھو کہ ہم صبح کا ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ لڑائی جتنا میرے لیے ناشتے سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو کیا واقعی یہ جنگ نپولین کے لیے صبح کا ناشتہ ثابت ہوئی؟ سپاہی جنرل اور شہنشاہ جنرل کی لڑائی ماڈرن ہسٹری کی سب سے اہم لڑائی کیوں سمجھی جاتی ہے؟ گلوبل ٹائمز پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ 18 جون 1815 کی صبح نپولین گھوڑے پر سوار اپنی فوج اور میدان جنگ کے معائنے کے لیے نکلے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ خاصا مایوس کن تھا۔ رات بھر وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے میدان جنگ کیچڑ سے بھر گیا تھا۔ میدان میں فرانسیسی توپ خانے کو بہت زیادہ کامیابی ملنے کا چانس کم ہو گیا تھا کیونکہ فرانسیسی توپوں کے گولوں میں خاص بات تھی کہ وہ زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ گولے گیند کی طرح اچھلتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس کر پھٹ جاتے تھے، یعنی دشمن دور بھی کھڑا ہو تو بھی یہ اس تک پہنچ جاتے تھے، لیکن کیچڑ سے بھرے میدان میں ان کی یہ صلاحیت کم ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نپولین کے لیے ایک اور پریشانی یہ تھی کہ وہ خود شدید بیمار تھے۔ واٹرلو کے مقام پر یہ وہ گھر ہے جو نپولین کا آخری ہیڈ کوارٹر تھا اور لڑائی سے پہلے آخری رات وہ اسی گھر میں ٹھہرے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ رات بھر وامٹنگ کرتے رہے اور 4 گھنٹے سے بھی کم سو پائے۔ ان کی صحت کے اعتبار سے انہیں میدان جنگ کی بجائے ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی انہیں واٹرلو کے میدان تک لے گئی جہاں انہیں ایسے حالات میں جنگ لڑنا پڑی جو ان کے فیور میں نہیں تھے۔ نپولین بوناپارٹ کو ایک وقت میں 2 فوجوں کا سامنا تھا۔ ایک فوج تو وہ برطانوی لشکر تھا جو ڈیوک آف ویلنگٹن کی کمان میں ان کے بالکل سامنے شمال میں موجود تھا۔ اس میں انگریزوں کے علاوہ نیدرلینڈ کے فوجی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ اس لشکر کی تعداد 68,000 یعنی 68,000 تھی، لیکن ایک دوسری فوج بھی تھی اور یہ دوسری فوج نپولین بوناپارٹ کے مشرق میں تقریباً 15-20 کلومیٹر دور موجود تھی۔ یہ پروشین آرمی تھی جسے آپ جرمن فوج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر جرمنی قائم ہوا۔ تو یہ بھی ایک فوج تھی جس سے ان کو لڑنا تھا۔ اس کی تعداد بھی 50,000 تھی۔ اس کی کمان پروشین کمانڈر وان بلچر کر رہے تھے۔ پروشین فورسز کو محض 2 روز پہلے 16 جون کو نپولین نے شکست فاش دیکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک کمانڈر جنرل گروچی کو 34,000 فورسز کے ساتھ اس ہاری ہوئی پروشین آرمی کے پیچھے بھیجا تھا۔ نپولین نے کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ پروشین آرمی کو اتنا دور دھکیل دیا جائے کہ وہ انگریزوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکیں، لیکن ہوا یہ تھا کہ نپولین کے ایک کمانڈر نااہل ثابت ہوئے، وہ راستہ بھٹک گئے اور مرکزی پروشین آرمی کی لوکیشن نہ ڈھونڈ سکے۔ پروشین آرمی اب واٹرلو کے بہت قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور کسی بھی وقت برٹش کمانڈر ڈیوک آف ویلنگٹن کی مدد کے لیے آ سکتی تھی۔ ان دونوں فوجوں کے مقابلے کے لیے نپولین کے پاس اس وقت محض 72,000 فوجی تھے۔ میدان جنگ کی صورتحال بھی نپولین کے لیے آئیڈیل نہیں تھی۔ ایک تو بارش کی وجہ سے توپ خانے کی نقل و حرکت میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ برٹش کمانڈر ڈیوک آف ویلنگٹن کی زبردست جنگی پلاننگ۔ واٹرلو کو میدان جنگ کے طور پر بھی نپولین نے نہیں بلکہ برطانوی کمانڈر نے چنا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش آرمی کے جوانوں کی اکثریت ناتجربہ کار تھی اور ان کے توپ خانے کی صلاحیت بھی فرانسیسیوں سے کم تھی۔ ڈیوک آف ویلنگٹن جانتے تھے کہ اس توپ خانے اور فوج کے ساتھ اگر انہوں نے پہلے نپولین پر خود حملہ کر دیا تو شکست ہی ان کا مقدر ہوگی۔ انہوں نے جنگ کے لیے ایسا مقام ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ اپنی فوج کو محفوظ دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر سکیں۔ واٹرلو کا یہ میدان انہیں اپنی اس دفاعی ڈیفینسو اسٹریٹجی کے لیے انتہائی موزوں لگا تھا، اس لیے انہوں نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ واٹرلو کی خوبی یہ تھی کہ اس کے وسیع میدان کے ایک حصے میں ڈھلوان تھی۔ ڈیوک آف ویلنگٹن نے اس سلوپ کے پیچھے اپنی زیادہ تر فوج کو چھپا لیا تھا۔ ڈھلوان کے سامنے فرانسیسی فوج کھڑی تھی اور انہیں برطانوی فوج نظر نہیں آ رہی۔
यानी दुश्मन की नकलो हरकत को वो पूरी तरह देख नहीं सकते थे। दोस्तों, मैदान जंग में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि दुश्मन आपकी नजरों से ओझल हो और आप इसकी चालों को ना देख पाए। फिर कुछ बरतानवी फौजियों ने अपनी बाकी फौज के आगे ढलवान के ऊपर भी सफ बंदी कर ली थी। यहाँ से वो फ्रांसीसी फौज को देख भी सकते थे और उसकी चालों से मुतल्लिक अपने कमांडर को बाखबर भी रख सकते थे। कमांडर वेलिंगटन ने एक और काम ये किया था कि जिस ढलवान के पीछे इनकी फौज छुपी हुई थी, इसके आगे दाएं तरफ और सेंटर में बने हुए कुछ देहाती मकानात और फार्म हाउसेस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। उन्होंने इन दोनों जगहों पर फौज के कुछ दस्ते तैनात कर दिए थे। सेंटर वाली पोजीशन पर 400 के लगभग फौजी तैनात थे। ये फौजी जर्मन थे और ब्रिटिश आर्मी के मुलाजिम थे। इनकी पोजीशन इसलिए भी अहम थी क्योंकि इस पर कब्जा किए बगैर फ्रांसीसी फौज का मरकजी हिस्सा ढलवान के पार दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, अब सूरत हाल ये थी कि बरतानवी फौज इंतहाई जबरदस्त दफाई पोजीशन लिए हुए थी। इनकी मदद के लिए प्रोशियन जर्मन फौज भी करीब ही मौजूद थी। ये फौज चंद घंटों में वाटरलू पहुंच सकती थी। मैदान जंग के मुतालिक आप पहले ही जान चुके हैं कि वो कीचड़ से भरा हुआ था, जहां तोप खाने की नकलो हरकत मुश्किल थी। नेपोलियन खुद भी बीमार थे, यानी जंग लड़ने के लिए कम से कम फ्रांसीसी एतबार से ये आइडियल सिचुएशन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर भी नेपोलियन ये जंग लड़ने क्यों जा रहे थे, इसकी वजह आप वीडियो के शुरू में जान चुके हैं। नेपोलियन ना तो वेलिंगटन को अच्छा कमांडर समझते थे और ना ही इनकी नज़र में बरतानवी फौज कोई प्रोफेशनल आर्मी थी। वो तो इस लड़ाई को सुबह के नाश्ते से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। बरतानवी फौज की जबरदस्त दफाई पोजीशन देखकर भी वो दुश्मन की महारत के कायल नहीं हुए थे। उल्टा वो इस दफाई पोजीशन से ये मतलब ले रहे थे कि दुश्मन बहुत ही कमजोर है, डर गया है, मैं तो इसको चुटकियों में हरा दूंगा। इन्हें यकीन था कि प्रोशियन आर्मी जहाँ भी है उसकी मदद से पहले वो बरतानवी फौज को हरा भी चुके हैं। इसके बाद अकेली प्रोशियन आर्मी से निपटना कोई मुश्किल ना होगा। इसलिए फेवरेबल हालात ना होते हुए भी नेपोलियन ने इसी रोज इसी मैदान में लड़ने का फैसला किया। नेपोलियन चूंकि बीमारी की वजह से मैदान जंग में ज्यादा देर नहीं ठहर सकते थे, इसलिए दरमियान में वो कभी कभार आराम के लिए या प्रोशियन आर्मी की आमद के मुमकिन रास्तों का जायजा लेने के लिए मैदान जंग से हट भी जाते थे। इनकी गैर मौजूदगी में सीनियर फ्रेंच कमांडर मिशेल नी फौज की कमान संभालते थे। तो दोस्तों, ये वो बंदोबस्त था जिसके साथ अब वाटरलू का तारीखी सरसब्ज मैदान खूनी जंग में ढलने वाला था। 18 जून की सुबह 11:35 पर फ्रांसीसी तोपखाने ने दुश्मन पर फायर खोल दिए। बरतानवी फौज के कुछ दस्ते जो ढलवान के ऊपर खड़े थे, इन्हें खासा नुकसान पहुंचा। अलबत्ता इनके अक्ल में ढलवान के पीछे छुपी हुई ज्यादातर फौज महफूज रही। ये बरतानवी फौजी ढलवान के साथ लेट गए थे, जिसकी वजह से गोले इनके सरों के ऊपर से गुजरकर दूर गिरते रहे। ब्रिटिश कमांडर ने अपने तोपखाने को जवाबी फायरिंग से रोके रखा था ताकि इनका बारूद जाया ना हो और नहायत अहम मौके पर ही काम आए। कुछ देर बाद नेपोलियन के हुक्म पर फ्रांसीसी तोपें खामोश हो गई। इसके बाद उन्होंने कुछ पैदल दस्तों को मैदान में बाईं जानिब मौजूद फार्म हाउस पर कब्जे के लिए भेज दिया, जबकि एक दूसरे दस्ते को सेंटर में मौजूद छोटे से फार्म हाउस पर, जहां जर्मन फौजी तैनात थे, इस पर हमले का हुक्म दिया। फ्रांसीसी फौज ने बारी बारी दोनों फार्म्स पर भरपूर हमला कर दिया, लेकिन दोनों जगहों पर इन्हें जबरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बाईं जानिब वाले फार्म हाउस, जिसे हगमोंट फार्म कहते थे, वहां बरतानवी फौजी ने फ्रांसीसियों का खूब मुकाबला किया। फ्रेंच फोर्सेस एक मौके पर फार्म के सहन में दाखिल हो गई, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस ने इन्हें फिर बाहर धकेल दिया। नेपोलियन ने बार बार फौजी दस्ते इस फार्म हाउस की तरफ भेजे, गोलाबारी भी की गई, लेकिन लड़ाई के आखिर तक ये पोजीशन फ्रांसीसियों के कब्जे में ना आ सकी। यूं बेकार में ही सैकड़ों फ्रांसीसियों की जानें जाया हो गई। हॉगमोंट में अगर ये सूरत हाल थी दोस्तों, तो सेंटर वाले फार्म हाउस में भी यही सूरत हाल थी। सेंटर वाला फार्म हाउस जो लाहे सेंट कहलाता था, वहां जर्मन फोर्सेस ने फ्रांसीसियों का पहला हमला बुरी तरह पसपा कर दिया। फ्रांसीसियों ने कुछ देर बाद दूसरा हमला किया। दोनों तरफ से बहुत से सिपाही मारे गए। एक खूनी मार्के के बाद फ्रांसीसी फौजी फार्म में दाखिल हो गए। 400 जर्मन में से कुल 42 फौजी ही जान बचाकर फरार हुए और ढलवान के पीछे बरतानवी फौज से जा मिले। यूं इस फार्म हाउस पर फ्रेंच परचम लहराने लगा। जब फार्म्स पर कब्जों की लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त बरतानवी और फ्रांसीसी फोर्सेस के मरकजी हिस्सों में भी बराह रास्त जंग शुरू हो चुकी थी। हुआ ये कि नेपोलियन की फौज का दायां हिस्सा अपने सामने मौजूद बरतानवी फोर्स जो कि ढलवान के ऊपर खड़ी थी, इसकी तरफ बढ़ने लगा। बरतानवी तोपखाने ने इस फोर्स पर फायर खोल दिया और इसे खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जवान आगे बढ़ते रहे। ये सिपाही 150 की सफों में आगे पीछे चल रहे थे।
लेकिन इनके मुकाबले में जो बरतानवी दस्ते थे वो ढलवान के आगे एक ही तवील सिंगल लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस सफ बंदी का फायदा ये था कि तमाम बरतानवी फौजी एक ही वक्त में अपनी बंदूकों से दुश्मन पर निशाना ले सकते थे, जबकि दुश्मन की सफ़ें जो एक सिंगल लाइन से छोटी थीं, इनके लिए ऐसा फायर करना मुश्किल था। बरतानवी हुकूमत कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अंग्रेजों ने नेपोलियन को इतनी दूर भेजने का फैसला किया जहां से वो किसी तौर फ्रांस वापस ना आ सके। ये जो जजीरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान अटलांटिक ओशन में वाक़या है। इसे सेंट हेलेना कहते हैं। नेपोलियन को इसी जजीरे पर जलावतन किया गया था। इसकी लोकेशन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जगह बरतानिया और फ्रांस से बहुत ही दूर है। इसी जजीरे पर नेपोलियन ने अपने आखिरी बरस गुमनामी में और बीमारी से लड़ते हुए गुजारे, जहां इन्हें रहने के लिए ये घर दिया गया था जिसे लॉन्गवुड हाउस कहते थे। इसी घर में नेपोलियन ने अपनी यादाश्तें भी लिखवाई। नेपोलियन चूंकि वाटरलू के मैदान में ही बीमार हो गए थे, इसलिए जजीरे पर इन्हें अंग्रेजों की तरफ से एक डॉक्टर भी मुहैया किया गया था, लेकिन इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हो सके। शायद वाटरलू की शिकस्त और अपने एम्पायर के छिन जाने के डिप्रेशन ने इन्हें बीमारी से मुकाबला करने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। 5 मई 1821 के रोज नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो गई। इनकी उम्र महज 51 बरस थी। अंग्रेजों ने इनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया और इससे ये बात सामने आई कि इन्हें मैदे का कैंसर लाहक था। दोस्तों, नेपोलियन एक मशहूर ज़माना जनरल थे, इसलिए इनकी मौत की कहानियां आज तक खत्म नहीं हुई। ये मुअम्मा आज भी हल तलब है कि इन्हें अंग्रेजों ने जहर दिया था या वाकई ही ये कैंसर की वजह से मरे थे। कहा जाता है कि इन्हें मारने के लिए आर्सेनिक जहर इस्तेमाल किया गया था, जो खाने पीने की किसी चीज में मिलाकर इन्हें दिया जाता था। फिर जदीद मेडिकल एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस इसके बरक्स ये समझते हैं कि नेपोलियन की मौत मैदे के सरतान यानी कि स्टमक कैंसर से हुई थी। जहर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। इनकी दलील ये है कि नेपोलियन के वालिद और इनकी बहन की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। यानी एक्सपर्ट्स की राय में यह स्टमक कैंसर नेपोलियन की फैमिली में था। ये मौरूसी बीमारी थी। नेपोलियन बोनापार्ट को मौत के बाद इनकी डेड बॉडी को महफूज करके सेंट हेलेना जजीरे पर ही एक कब्र में दफन किया गया था। लेकिन 19 वर्ष बाद 1840 में फ्रांसीसी हुकूमत की दरखास्त पर इनके जिस्म को कब्र से निकाल लिया गया। इनका ताबूत खोला गया तो इनकी लाश बड़ी हद तक दुरुस्त हालत में मौजूद थी। इनके ताबूत को जुलूस की शक्ल में साहिल पर ले जाया गया। इस मौके पर रास्ते के दोनों तरफ फौजी खड़े थे जिन्होंने नेपोलियन को सलामी दी। फिर इनके ताबूत को एक बहरी जहाज में फ्रांस रवाना कर दिया गया। फ्रांस में हुकूमती ओहदेदारों ने इस ताबूत को रिसीव किया। फिर पेरिस में पूरे सरकारी एजाज के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। इनकी बॉडी को इस नए सफेद और सब्ज संगे मरमर से सजे मकबरे में रख दिया गया। सेंट हेलेना जजीरे में नेपोलियन की पुरानी कब्र के गिर्द भी जंगला लगाकर इसे भी महफूज बनाया गया है और इसके अलावा इस जजीरे पर जिस घर में उनके आखिरी दिन गुजरे इसे भी महफूज रखा गया है और इसके सहन में फ्रांस का परचम भी नस्ब है। लेकिन ये जजीरा इस वक्त भी बरतानिया की ओवरसीज कॉलोनी में शामिल है। ये फ्रांस का हिस्सा नहीं है। नेपोलियन तो इस तरह जिला वतनी में एक छोटे से जजीरे में वफात पा गए, लेकिन इन्हें हराने वाले ब्रिटिश कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बरतानिया के हीरो बन गए। वो 1828 और फिर 1834 में 2 बार बरतानवी वजीर आजम भी मुंतखब हुए। दोस्तों, आपके ख्याल में नेपोलियन बोनापार्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में से कौन बड़ा कमांडर था और इनमें से कौन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री था? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप कभी बेल्जियम जाएं तो वाटरलू का मैदान भी जरूर देखिएगा। इस मैदान जंग में तमाम तारीखी आसार आज तक महफूज रखे गए हैं। मैदान जंग में जिन फार्म हाउसेस के लिए लड़ाई हुई थी वो भी महफूज हैं। यहाँ एक मसनूई पहाड़ी भी बनाई गई है जिस पर एक शेर का मुजस्मा यादगार के तौर पर नस्ब है। इसलिए इस पहाड़ी को लाइन माउंट या बबर शेर की पहाड़ी कहते हैं। नेपोलियन ने वाटरलू से पहले जिस इमारत में क़याम किया था इसे भी म्यूजियम में बदल दिया गया। इसके अलावा बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के मरकज में वाटरलू रेलवे स्टेशन भी कायम है। लफ्ज वाटरलू को अंग्रेजी जुबान में डिफीट यानी शिकस्त के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये इतनी बड़ी जंग थी कि इसने इंग्लिश ग्रामर में भी इजाफा किया। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान।